ارے منٹو، تمہارا جنم دن آنے والا ہے، کیا تم پارٹی نہیں دو گے ہمیں؟ ہاں ہاں، بتاؤ بتاؤ منٹو، کب پارٹی دے رہے ہو؟ ہم اتنے دنوں سے تمہارے جنم دن کا ہی تو انتظار کر رہے ہیں۔ ارے ارے، دے دوں گا، جنم دن میرا ہے اور مجھ سے زیادہ تم لوگ خوش ہو رہے ہو۔ ارے منٹو، یہی تو ہماری دوستی ہے، اسی لیے تو ہمیں تمہارے جنم دن کا دن بھی یاد رہتا ہے۔ اچھا، زیادہ باتیں مت بناؤ، اور ہاں، ایک بات کان کھول کے سن لو، میرے لیے جو گفٹ لائے گا وہی میرے جنم دن پہ آئے گا، ورنہ میرے جنم دن پہ تم لوگ مت آنا۔ ارے منٹو، تم فکر مت کرو، میں اپنے پاپا سے پیسے لے کر تمہارے لیے سب سے مہنگا اور اچھا تحفہ لوں گا۔ دوسری طرف کوکو بہت پریشان اور اداس ہو جاتا ہے، کیونکہ کوکو اتنا امیر نہیں ہوتا اور وہ اپنے دوست کے لیے مہنگا تحفہ نہیں خرید سکتا۔ ارے کوکو، ایک دم سے چپ کیوں ہو گئے؟ ابھی تو بہت اچھل رہے تھے، کیا ہوا؟ تم مجھے کوئی تحفہ نہیں دو گے؟ میں تمہیں مہنگا تحفہ کیسے دوں گا؟ میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں۔ ارے تو کیا ہوا؟ جگو کے پاس بھی تو پیسے نہیں ہیں، وہ بھی تو کوئی کام نہیں کرتا، وہ اپنے پاپا سے لیتا ہے، تو تم بھی اپنے مما سے پیسے لے لو۔ نہیں، میں مما سے پیسے نہیں لے سکتا، میری مما کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ میرے لیے کھانا بھی مشکل سے لاتی ہے، میں انہیں اور زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، تو تمہیں میرے برتھ ڈے پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی وہاں میرے سب امیر دوست آئیں گے اور تمہیں دیکھ کر وہ سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ اچھا منٹو، میں تو تمہارے لیے گفٹ لینے جا رہا ہوں، تو شام کو برتھ ڈے پارٹی پہ نہیں ملتے ہیں، بائے۔ منٹو کے پاپا، منٹو کا برتھ ڈے آ رہا ہے، میں سوچ رہی تھی کہ منٹو کے لیے کوئی پیارا سا گفٹ لے لوں۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، اس لیے میں نے برج خلیفہ 3 ٹکٹ بک کر لی ہے، ہم منٹو کے جنم دن پر وہاں گھومنے چلیں گے۔ لیکن ہم وہاں جا کر کیا کریں گے؟ منٹو کا جنم دن یہی مناتے ہیں۔ ارے وہاں پہلے ہم جا کر گھومیں گے، پھر میں نے منٹو کے لیے بہت بڑی پارٹی رکھی ہے جس میں میرے بہت امیر دوست آئیں گے۔ ہاں، وہ بہت اچھے ہیں، تو جاؤ، اس کو یہ خوشی کی خبر دے دو تاکہ وہ جانے کی تیاری کر لے۔ یہ خوشی کی بات سن کر منٹو کی مما منٹو کے پاس چلی جاتی ہے۔ ارے ماں، آپ بار بار پریشان کرنے آ جاتی ہیں، جلدی بتاؤ کیا بات ہے، مجھے شام کی پارٹی کے لیے بہت سی چیزیں دیکھنی ہیں۔ ارے بیٹا، آج ہم سب برج خلیفہ گھومنے جا رہے ہیں۔ مما، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آج شام میری پارٹی ہے اور آپ جانے کی باتیں کر رہی ہیں۔ پر بیٹا، تمہارے پاپا نے وہاں تمہارے لیے پارٹی رکھی ہے، وہاں تمہارے پاپا کے سب دوست تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ مجھے کچھ نہیں پتا، آپ جا کر پاپا سے کہہ دو کہ میں پارٹی یہی کروں گا اور نہ کہیں نہیں جاؤں گا۔ پر بیٹا، تمہارے پاپا نے بہت سارے پیسے خرچ کیے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ ارے، آپ کو یہ سب کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ بیچاری ہریانی طوطی منٹو کو خوشی کی خبر دینے آئی تھی، پر منٹو کی باتیں سے ہریانی طوطی بہت ہی اداس ہو گئی اور اس کا دل ٹوٹ گیا۔ ارے ہریانی، کیا ہوا؟ منٹو نے کیا کہا؟ وہ جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے یا نہیں؟ نہیں، وہ مجھ پر بہت چلایا اور غصہ بھی کیا اور میری ایک بات بھی نہیں سنی، اسے اپنی ماں سے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، ہمارے لاڈ پیار نے اسے بدتمیز کر دیا ہے، آج اس نے تم سے بدتمیزی کی، کل مجھ سے بھی ایسے ہی بات کرے گا، تو کیا کرے؟ ہم اسے منع بھی تو نہیں کر سکتے۔ آج اس کا جنم دن ہے، ابھی جانے دو، ایک بار اس کا جنم دن گزر جائے پھر میں اس سے بات کرتا ہوں۔ منٹو نے اپنی ماں سے بہت ہی بدتمیزی سے بات کی، لیکن اسے اس بات کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی، وہ آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ پاپا، مجھے پیسے تو دے، میرے دوست منٹو کا جنم دن آ رہا ہے، اس کے لیے میں ایک پیارا سا تحفہ لینا چاہتا ہوں۔ جگو بیٹا، مجھے ایک بات بتاؤ،
तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे जन्मदिन पर क्या तोहफा दिया था? उसने मेरे जन्मदिन पर मुझे एक प्यारी सी गाड़ी दी थी। क्या मैं आपको वो दिखाऊं? वो अभी भी बहुत तेज और अच्छी है। तो तुम भी उसे एक गाड़ी दे दो। तुम्हें तो पता है ना, ये हमारा खानदानी रिवाज है। हमें जो जन्मदिन पर जो भी तोहफा देता है, हम उसके जन्मदिन पर उसे वही तोहफा देते हैं। शुक्रिया अप्पू, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं कब से परेशान था कि मैं मिंटू को ऐसा क्या दूँ कि वो बहुत खुश हो जाए। जंगल में कोको की माँ जूस बेच रही होती है। इतने में कोको उसके पास आ जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे आपसे एक बात करनी है, पर प्लीज़ आप मुझे मना मत कीजिएगा। अरे मेरे प्यारे बेटे, बताओ क्या हुआ? मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए कभी मना नहीं करती और तुम्हारी सारी बातें मानती हूँ। तो बताओ क्या हुआ? मम्मा मम्मा, आज रात को मेरे दोस्त मिंटू का जन्मदिन है, लेकिन उसने कहा है कि जो गिफ्ट नहीं लाएगा वो मेरे बर्थडे पार्टी में मत आना। पर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं उसके लिए महंगा तोहफा खरीद सकूं। अरे बेटा, इतनी सी बात है। देखो, मैं जूस बेचती हूँ और जूस आजकल बहुत महंगा हो गया है। एक डब्बा जूस का 100 रुपए में आता है, तो तुम उसके लिए जूस ले जाओ। पर मम्मा, मैं जूस कैसे लेकर जाऊंगा? सब मुझ पर हंसेंगे। पर बेटा, हमारे पास इसके अलावा देने के लिए और कुछ भी नहीं है। ठीक है मम्मा, मैं जूस ही ले जाऊंगा। आप मेरे लिए इन जूस के डब्बों को एक प्यारे से डब्बे में पैक कर दीजिएगा। देखते ही देखते शाम हो गई। मिंटू ने बहुत अच्छी पार्टी रखी थी, बहुत सी खूबसूरत सजावट की थी और एक बहुत बड़ा केक भी मंगवाया था। कुछ ही पल में मिंटू केक काटने के लिए आ जाता है। हैप्पी बर्थडे मिंटू, हैप्पी बर्थडे मिंटू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मिंटू। मिंटू के केक काटने के बाद सभी पंछी इसे गिफ्ट देने आ जाते हैं। ये लो मिंटू बेटा, ये तुम्हारा गिफ्ट है। इसमें मैं तुम्हारे लिए एक बहुत महंगी वीडियो गेम लेकर आई हूँ। ओह, वीडियो गेम! वीडियो गेम तो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू आंटी। फिर थोड़ी देर में जग्गू अपना तोहफा लेकर आता है। मिंटू दोस्त, मैं तुम्हारे लिए ऐसा तोहफा लेकर आया हूँ जिससे तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे। अरे, ऐसी भी क्या चीज़ है जिससे तुम लेकर आए हो और मेरे होश उड़ जाएंगे? मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महंगी कार लेकर आया हूँ। अरे, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। अब जाओ जाओ, ये कार तो मेरी हो गई। अब तुम जाओ और अपना केक ठूसो। कोको अपने दोस्त के लिए गिफ्ट तो ले आता है, पर वो अंदर जाने के लिए तैयार नहीं होता और उसकी मम्मा उसे समझा रही होती है, जाओ बेटा, अपने दोस्त को ये गिफ्ट देकर वापस आ जाना। पर मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर सबने मेरा मजाक उड़ाया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। जाओ देखो, मिंटू ने केक भी काट लिया है और पार्टी भी ख़त्म होने वाली है, तो जल्दी जाओ बेटा। इसके बाद कुकू मिंटू के पास आ जाता है। हाँ भाई कुकू, क्या गिफ्ट लाए हो मेरे लिए? मैं तुम्हारे लिए बहुत ही मज़ेदार जूस लाया हूँ। क्या क्या तुमने मुझे बेकारी समझा हुआ है? अपने ये बेकार तोहफा उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मिंटू सबके सामने कुकू का तोहफा फेंक देता है और उसे बहुत बातें सुनाता है। उसके सब दोस्त भी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कुकू बहुत ही मायूस हो जाता है। वो जल्दी से अपनी मम्मा के पास जाता है और वो घर चली जाती है। अरे कुकू बेटा, क्या हुआ? तुम आते से इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? तुम वहाँ जाने के लिए इतने बेताब थे और इतनी जल्दी वापस आ गए। मम्मा, क्या ये अमीर लोग ऐसे ही बदतमीज होते हैं? क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? मम्मा,
मिंटू ने मेरा तोहफा फेंक दिया और सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। अब मुझे भी अमीर बनना है। अब मैं और भी मेहनत करूँगा और बहुत सारे पैसे कमाऊँगा। अगली सुबह कोको की माँ जूस बेचने चली जाती है और कोको जंगल में चला जाता है। अब मैं कुछ ऐसा काम करूँगा कि सब हैरान हो जाए और मैं बहुत सारे पैसे भी कमाऊँगा। तो वो जंगल से बहुत सारी लकड़ियाँ तोड़ लाता है और बहुत सोचता है। फिर उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्यों ना इससे फर्नीचर बना लिया जाए। तो वो प्यारे फर्नीचर बना लेता है और पेंटिंग भी बनाता है। अरे आखिरकार मैं कामयाब हो गया। कुकू ये कहता ही है कि इतने में एक अमीर पंछी उसकी दुकान पर आ जाता है। अरे बेटा, तुम्हारा मालिक कहाँ है? मुझे ये सब सामान बहुत पसंद आया और मैं ये खरीदना चाहता हूँ। अरे अंकल, मैं ही इस दुकान का मालिक हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए। क्योंकि उस अमीर पंछी को उसकी दुकान की सब चीज़ें पसंद आ जाती हैं तो वो सब खरीद लेता है। कुकू सारे पैसे लेकर अपनी मम्मा के पास आ जाता है और इस तरह कुकू वक्त के साथ बहुत मेहनत करता है, रोज़ाना नई चीज़ें बनाता है और इन्हें बेचता है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि वो बहुत अमीर आदमी हो जाता है। एक दिन वो अपने काम से किसी जगह जा रहा होता है तो उसे पीछे से कोई ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जो उसे जानी पहचानी लगती है और वो पीछे मुड़कर देखता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे मिंटू नजर आता है और वो मिंटू के पास जाता है। अरे मिंटू, कैसे हो तुम? पहचाना मुझे? अरे कौन हो तुम? अरे मैं कुकू। कुकू? कौन कुकू? अरे वही कुकू जिसे तुमने अपने बर्थडे पार्टी से बाहर निकाला था। अरे हाँ, याद आया मुझे। तुम तो बहुत अमीर हो गए हो। और ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ, ये गाड़ी मेरी है। अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, जिस दिन तुमने मेरा मजाक उड़ाया था मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि एक दिन मैं इतना अमीर इंसान बनूंगा कि कभी कोई मेरा मजाक ना उड़ा पाए। और देखो, वो सब सच भी हो गया। मिंटू ये सब सुनकर बहुत ही शर्मिंदा होता है और वो कुकू से कहता है, अरे कुकू, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा बर्ताव किया। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो। क्योंकि कुकू का दिल बहुत साफ और बड़ा होता है तो वो मिंटू को माफ़ कर देता है और इस तरह दोनों अपने घर वापस लौट जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। हमेशा सबको इज्जत देनी चाहिए, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।